السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد شفیق عباسی اور میں ہوں شیاسین۔ بڑھتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز کی طرف۔ مانسہرہ ابرار احمد سٹی رپورٹر۔ ضلع مانسہرہ میں تناول کے نام سے نئی تحصیل کا نوٹیفکیشن جاری۔ ضلع مانسہرہ میں تناول کے نام سے نئی تحصیل کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے نئی تحصیل کا نوٹیفکیشن وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں مشیر برائے داخلہ بابر سلیم سواتی کے سربراہی میں مقامی نمائندہ اور معززین علاقہ کے وفد کو پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نئی تحصیل تناول کا قیام مانسہرہ کے عوام کا دیرینہ مطالبہ تھا، جو موجودہ صوبائی حکومت نے پورا کر دیا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ نئی تحصیل کے قیام سے علاقے کے عوام کو درپیش مسائل مقامی سطح پر حل کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت صوبے کے تمام اضلاع کی یکساں بنیادوں پر ترقی کے لیے اقدامات کرے۔ مختلف علاقوں کے مقامی مسائل اور ضروریات کو مد نظر رکھ کر ترقیاتی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ضلع مانسہرہ میں نئی تحصیل کا قیام صوبائی حکومت کی مذکورہ حکمت عملی کا عملی مظاہرہ ہے۔ اس موقع پر مشیر داخلہ بابر سلیم سواتی کی قیادت میں وفد نے ضلع مانسہرہ تناول کے عوام کی طرف سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا خصوصی شکریہ ادا کیا اور کہا کہ تحصیل تناول کے قیام سے علاقے میں ترقی اور خوشحالی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ رکن صوبائی اسمبلی نذیر عباسی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں میرپور آزاد کشمیر سے رپورٹ کریں جی ایس نیوز کے بیورو چیف سید مرتضیٰ علی قاسمی۔ جی ناظرین، آج چک سواری کی مشہور روحانی شخصیت پیر سائی محمد یونس حیدری سجادہ نشین اور ان کے صاحبزادہ حمزہ علی حیدری پی ٹی وی نیوز میرپور کا ہنگامی دورہ ڈسٹرکٹ جیل میرپور سپرنٹنڈنٹ جیل میرپور سید یاسر قاسمی نے پرزور استقبال کیا۔ ان کے ساتھ آئے ہوئے بڑی تعداد میں مہمانوں نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر سپرنٹنڈنٹ جیل محترم یاسر قاسمی اور سجادہ نشین محترم سائی یونس اور صاحبزادہ حمزہ علی نے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر سجادہ نشین محترم یونس حیدری نے سپرنٹنڈنٹ جیل سید یاسر قاسمی کو اپنے آستانہ عالیہ چک سواری پر دعوت بھی دی اور ساتھ ہی تمام جیل کے عملے کے لیے دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی صحیح ڈیوٹی سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ بڑی تعداد میڈیا کے نمائندے بھی موجود تھے، جنہوں نے ڈسٹرکٹ جیل میرپور کا دورہ کیا۔ سپرنٹنڈنٹ جیل سید یاسر قاسمی نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ ہمارے جو ڈسٹرکٹ جیل میرپور میں قیدیوں کو جو سہولیات دی گئی ہیں میرٹ پر ہیں۔ ہم نے ہمیشہ قانون اور ضابطے کی پابندی کی، اس سے پہلے ہر چیز غیر آئینی اور غیر قانونی جیل کے اندر ہوتی تھی، اس کو ہم نے ختم کیا اور میرٹ کا خیال رکھا۔ میڈیا کے نمائندوں نے سپرنٹنڈنٹ جیل کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا یہ ڈسٹرکٹ میرپور کی جیل ہے جہاں پر جرائم کے قیدی موجود ہیں، ان پر نظر رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارا عملہ جیل یہ ڈیوٹی بخوبی سر انجام دے رہا۔ آخر میں سینئر صحافی بیورو چیف دن نیوز ملک اسحاق، روزنامہ جناح کے رپورٹر سید مرتضیٰ قاسمی، کیمرہ مین یاسر خان اور ہیڈ کانسٹیبل محکمہ پولیس سید ناظم گیلانی نے سپرنٹنڈنٹ جیل سید یاسر قاسمی کا شکریہ ادا کیا اور جیل کے اصول و ضابطے پر ان کو مبارکباد بھی دی۔ ساتھ کا بعد سے خبر شامل کرتے جامع اقبال ملنگی کی رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت کی جانب سے فنڈز جاری۔ حلقہ این 178 کے ایم این اے مخدوم سید مصطفیٰ نے انڈین کونسل محمد پور لمحہ کے لیے فنڈ جاری کر کے عوام کا دیرینہ مسئلہ حل کر دیا۔ اسی سلسلے میں یونین کونسل محمد پور لمحہ کے سابق چیئرمین سردار ملک ساجد محمود کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا، جس میں ڈسٹرکٹ کونسل کے سابق صدر سردار سرفراز خان، سیکریٹری سلیم خان گوپانگ، سردار اسماعیل خان لنگا، ممتاز پنوار، چودھری مصدق جام، اکبر کھمبڑا، یعقوب خان عباسی، رانا عبد الوحید، عابد خان پٹھان سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر یونین کونسل محمد پور لمحہ کے سیکریٹری شیر محمد خان لنگا نے بریفنگ دی۔ اجلاس کے دوران سردار ملک ساجد محمود نے کہا کہ یونین کونسل محمد پور لمحہ کو ترقیاتی فنڈز فراہم کر کے مخادیم جمال دین والے نے نمائندگی کا حق ادا کر دیا۔ بلا تفریق عوام کے بنیادی مسائل حل کیے جائیں گے۔ اس غیر سیاسی اجلاس میں تمام برادری کی نمائندہ شخصیات نے شرکت کی اور سب کی برابری کی سطح پر منصوبے مکمل کیے جائیں گے۔ ہمیشہ عوام کی بے لوث خدمت کی ہے اور کرتے رہیں گے۔ سلمان احمد قریشی کی رپورٹ کے مطابق 10ویں سالانہ خاتون جنت کانفرنس جماعت اہل حرم پاکستان کے زیر اہتمام منعقد ہو رہی ہے۔ بمقام جامعہ نعیمیہ نیلم روڈ سیکٹر G93 اسلام آباد 14 جنوری بروز ہفتہ صبح 10 بجے سب کو خصوصی دعوت دی جاتی ہے۔ زیر صدارت داعی اتحاد امت مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب کریں گے، جس میں ملک بھر سے جید علماء اکرام تشریف لائیں گے۔ ہزارہ بھر سے قافلے کی صورت میں عوام شرکت کرے گی۔ قافلہ خطیب اہل سنت علامہ مدثر حیدری صاحب کی زیر نگرانی ہزارہ بھر سے جائے گا۔ جانے والے علامہ مدثر حیدری صاحب سے رابطہ کریں 03400501183۔
पिशारुल अबरार डिविजनल ब्यूरो चीफ ने शहरा सिलेंडर ब्लास्ट धमाका, तहसील पब्बी बावडा कॉलोनी ई सेक्टर की रिहायशी घर में सिलेंडर धमाका। धमाके की वजह से मियां बीवी समेत 3 माह की बच्ची अफराद जाँ बहक, 2 खवातीन को निकाला जा रहा है। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच के इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। धमाके की वजह गैस लीकेज की वजह से पेश आए। धमाके में अब तक इत्तला के मुताबिक मुतअद्दिद अफराद फंसे हुए हैं। उकार शहजाद अली की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी प्रेस क्लब उकार रजिस्टर्ड के नौमुंतखब अहदेदारान की तकरीब हलबरदारी मुशीर वज़ीर आला पंजाब मलिक हक नवाज संगला ने नौमुंतखब अहदेदारान से हल्के में मनाने खसूसी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन टाइड मोहम्मद फुरकान बिलाल, सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल मिर्जा साजिद बेग, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार गुजर, एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर हक नवाज अली, सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चौधरी अमजद परवेज, साबिक सदर बार मिर्जा जुल्फकार अली, सदर अंजुमन ताजरान शेख रियाज अनवर, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान अब्दुल वहीद भल्लर, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन खुर्शीद जिलानी, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर इश्तियाक अहमद खान, डीएसपी हेडक्वार्टर चौधरी मोहम्मद अशरफ थे। तकरीब में मुंतखब अहदेदारान सिटी प्रेस क्लब उकाड़ा 2023 से हल्फ मुशीर वज़ीर आला पंजाब मलिक हक नवाज संगला ने लिया। तकरीब से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन टायर्ड मोहम्मद फुरकान बिलाल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार गुजर, सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल मिर्जा साजिद बेग, सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चौधरी अमजद परवेज, सदर अंजुमन ताजरान शेख रियाज अनवर, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन खुर्शीद जिलानी, जनरल सेक्रेटरी नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान आबिद हुसैन मुगल, नौमुंतखब सदर सिटी प्रेस क्लब उकाड़ा मेहर साजिद अली, जनरल सेक्रेटरी राना अब्दुल्ला सरवर, साबिक सदर मोहम्मद मजहर रशीद चौधरी, तुशाम जमील शामी दीगर ने खिताब किया। तकरीब में सीनियर सहाफ़ी साबिर मुगल, मलिक कामरान सिकंदर, इमदाद अली, तबस्सुम खरल, जहूर अहमद, शाहीन एजाज, ताहिर कादरी समेत सहाफ़ी और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदा ताज बरादरी ने शिरकत की। बाद आज़ाद सिटी प्रेस क्लब उकाड़ा की तरफ से ज़िले इंतज़ामिया और महकमा पुलिस के अफसरान को बेहतर कारकर्दगी पर अवार्ड दिए गए। रिपोर्ट मोहम्मद शमूल नज़ीर। जिला करम के इलाके अरावाली में दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 2 दहशतगर्द हलाक हुए जबकि पाक फौज के 3 जवान शहीद हो गए। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि शहदा सूबेदार शुजा मोहम्मद, नाइक मोहम्मद रमज़ान और सिपाही अब्दुर्रहमान। जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक खबर ज़िला करम के इलाके अरावाली में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है, जिसके नतीजे में 2 दहशतगर्द हलाक जबकि पाक फौज के 3 जवान शहीद हो गए हैं। जी बिल्कुल, ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। दहशतगर्दों से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। ISPR के का कहना है कि हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी में मुलव्वस थे। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 3 जवान शहीद हुए हैं, जिनमें सूबेदार शुजा मोहम्मद, नायक मोहम्मद रमज़ान और सिपाही अब्दुर्रहमान शामिल है। सिक्योरिटी फोर्सेस के इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाक फौज दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़म है। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। वज़ीर आज़म ने ज़िला करम में दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा है कि शोधा में सूबेदार शुजा मोहम्मद, नायक मोहम्मद रमज़ान और सिपाही अब्दुर्रहमान की बहादुरी को सलाम पेश करते हैं और अहले खाना से हमदर्दी ताज़ियत का इजहार करते हैं। उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ ऐनी अज़म और साबित कदमी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। पाकिस्तान की सलामती को चैलेंज करने वालों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। कौम की दुआएं बहादुर अफवाज के साथ हैं। जी बिल्कुल, ज़िला करम के जर्नल इलाके अरावाली में दहशतगर्दों और अपनी फौज के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। अपने फौजियों ने बहादुरी से मुकाबला किया, मौसर तरीके से दहशतगर्दों के ठिकाने का तयन किया। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के इलाके के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में सरगर्म रहे। ताहम शदीद फायरिंग के तबादले में सूबेदार शुजा मोहम्मद, उम्र 43 साल, सकना खैरपुर, नायक मोहम्मद रमज़ान, उम्र 32 साल, सकना खजदार और सिपाही अब्दुर्रहमान, उम्र 30 साल, सकना सखर ने बहादुरी से मुकाबला किया और शहादत को गले लगाया।
जी बिल्कुल, इलाके में पाए जाने वाले दहशत गर्दों को ख़त्म करने के लिए इलाके की सफाई की जा रही है। पाक फौज दहशत गर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़म है और हमारे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। जी बिल्कुल, ये कहना है ISPR का। इंतहाई अफसोसनाक खबर। पेशावर चित्राल शाहराह पर कुशादगी और मरम्मत का काम शुरू हो चुका है। इन सड़कों की तामीर और मरम्मत से अगर एक तरफ मुकामी लोगों और सियाहों को सफ़र में आसानी होगी, दूसरी जानिब इससे हादसात की शरह में भी कमी आएगी। इन सड़कों की तामीर पर इलाके के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। तफसील गुल हम्माद फारूकी की इस रिपोर्ट में। किसी भी इलाके या मुल्क की तरक्की के लिए सड़कें कलीदी किरदार अदा करती हैं। चतराल एक सियाहती जिला है जहां हर साल बरोगोल शंदूर मेला के साथ साथ कैलाश कबीले के सालाना मजहबी त्यौहार भी मनाए जाते हैं। इन मखसूस और निराली सकाफत और त्योहारों को देखने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर से सयाह यहाँ आते हैं, मगर यहाँ आने वाले हर सियाह की जुबान पर एक ही शिकवा आते हैं कि चतराल की सड़कों को बेहतर किया जाए ताकि उनको आने जाने में मुश्किलात का सामना न हो। कल हम लोगों ने सफ़र किया, बहुत तकलीफ से आए हैं, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त इलाका है। इनके रोड्स को, इनके कल्चर को और भी प्रमोट करना चाहिए, इनके रोड्स के लिए काम करना चाहिए ताकि ये लोग भी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। लवारी टनल के पास ज़ियारत से लेकर अशरीत तक अगरचे सड़क पर काम कई सालों से अधूरा पड़ा हुए हैं, जिससे मुसाफिरों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ताहम अब पेशावर चतराल की इस सड़क पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने तामीर और मुरम्मत का काम शुरू किया है, जिससे अवामी खुशी की लहर दौड़ गई। कलकटक के मुकाम पर सड़क पर वाटर बोर्ड का काम जारी है, जिससे सड़क काफी चौड़ा होगा। इन सड़कों की कुशादगी और जरूरी मुरम्मत से न सिर्फ मुकामी लोगों और सयाहों को सफर में आसानी होगी बल्कि हादसात का शरह भी कम होगा। दरोश से ताल्लुक रखने वाली खातून काउंसलर बीबी शाकिरा का कहना है कि अब खवातीन को आसानी के साथ इमरजेंसी की सूरत में अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा। हम वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि चतराल की सड़कों को जल्द से जल्द तामीर करें, क्योंकि इन खराब सड़कों पर सफ़र करते वक्त बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ख़ास कर ख़वातीन डिलीवरी के केस में हस्पताल पहुंचने से पहले या तो बच्चा ज़या हो जाता है या हमला ख़वातीन का इंतकाल हो जाता है। फ़िलहाल चतराल की सड़कों पर जो काम जारी है, इसीलिए हम वफाकी हुकूमत NHA और मुतल्लिक़ा इदारों के मशकूर हैं। इससे सफ़र में आसानी होगी और सयाहों को भी आने जाने में मुश्किलात का सामना नहीं होगा। इंजीनियर ज़िशानुल हक ने इन सड़कों की मुरम्मत पर NHA का शुक्रिया भी अदा किया। वफाकी हुकूमत और NHA की तरफ से अभी जो सड़कों पे काम हो रहा है, हम उसके सिलसिले में NHA और वफाकी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। सड़कों की बदहाली की वजह से यहाँ पे मकामी लोगों को भी मुश्किलात का सामना है और सयाहत के लिए जो लोग आते हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। विलेज कौंसिल दरोश बाजार की चेयरमैन अब्दुल कादिर ने इसे सियाहत की फ़रोग़ के लिए निहायत अहम करार दिया। यहाँ पे NHA की तरफ से यहाँ रोड पे जो काम चल रहा है, एक्सेसिबिलिटी की मैं बात करूं कि टूरिज़म के हवाले से एक्सेसिबिलिटी सबसे बेहतरीन चीज़ है। जब हमारे रोड बेहतर होंगे हमारा टूरिज़म प्रमोट होगा। इस हवाले से हम NHA का भी बहुत मशकूर हैं, जिन्होंने यहाँ पे कलकटक से लेकर केसू तक उन्होंने रोड पे काम शुरू किया है और आगे भी उनसे काम के हवाले से हमारी तवक्को ये है कि बेहतरीन तरीके से वो काम करेंगे। पेशावर चतराल सड़क की ब्लैक टॉपिंग यानी तारकोली करने के साथ साथ इसके दोनों जानिब शोल्डर भी पहली बार ट्रांजिट मिक्सर के जरिए कंक्रीट किया जाता है। इससे न सिर्फ सड़क की हिफाजत होगी बल्कि गाड़ियों को भी क्रॉसिंग या ओवरटेकिंग करने में आसानी होगी और हादसात का शरह भी कम होगा। चतराल की सड़कों पर तामीर और मुरम्मत का काम शुरू हो चुका है। इन सड़कों की मुरम्मत के बाद एक जानिब अगर हादसात कम होंगे तो दूसरी जानिब यहाँ पे मुकामी लोगों के साथ साथ सयाहों को भी सफ़र में आसानी मैसर होगी। चतरा से ब्यूरो चीफ अहमद फारूकी, GSTV UK। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. You're watching GSTV UK. Keep watching.